અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંતના નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રાણ ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજમાં પાઈ મેં માની છે. અહો રાજચંદ્ર ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી વા જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ. તત્વ વિચારણામાં શ્રી અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પૃષ્ઠ સંખ્યા 22 વિચાર નોંધ 2 તારીખ 27/4/1957. આ કાળને વિશે પ્રાયઃ પોતાના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાન વર્તે છે જેઓને, અને તેના પરિણામે તીવ્રપણે પ્રવર્તે છે રાગ દ્વેષ આદિ વિકારો જેમને, તેવા જીવોનું આત્યંતિક બાહુલ્ય જોવામાં આવે છે. ખેદનો વિષય છે કે બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં જીવોને ધર્મ વિશે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ઉપજતા જ નથી. વળી કોઈક જીવને કદાચિત ધર્મ પ્રત્યે રુચિ જાગે તો સત્પુરુષોનો સમાગમ તેને મળવો મુશ્કેલ છે. કદાચ આ મળી જાય તો પણ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ તે વિશે તેને રુચિ થતી નથી, પરંતુ બાહ્ય ક્રિયાઓ વગેરેમાં તે સંતોષ માની લે છે. આમ હોવાનું કારણ એ સંભવે છે કે તે પરીક્ષા પ્રધાન દૃષ્ટિવાળો નથી, એટલે કે હેય અને ઉપાદેયનો નિર્ણય કરવામાં અસમર્થ છે. આટલું રાખીએ. આ કાળને વિશે પ્રાયઃ પોતાના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાન વર્તે છે જેઓને, અને તેના પરિણામે તીવ્રપણે પ્રવર્તે છે રાગ દ્વેષાદિ વિકારો જેમને, તેવા જીવોનું આત્યંતિક બાહુલ્ય જોવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા મનુષ્યોની વાત કરી છે. બીજા બધા જીવો તો ઘણા છે અનંતાનંદ, એમની વાત નથી કરી. પણ જે મનુષ્ય છે એમાં પણ જેમણે ભારત દેશમાં જન્મ લીધું છે તેમાં પણ આર્ય કુળમાં જન્મ લીધું છે એવા જીવોની વાત કરે છે. બીજા બધા તો છે જ, બીજા બધા તો બહાર જ છે એમાં. પણ જેને ભારત દેશમાં જન્મ લીધું છે, આર્ય કુળમાં જન્મ લીધું છે,
એવા જીવોની વાત કરે છે કે પ્રાય પોતાના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાન વર્તે છે. જરા પણ જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાન કરવાની રુચિએ નથી. ખબર એ નથી ને રુચિ એ નથી. એમાં પણ એમ હજી આર્ય ક્ષેત્ર, આર્ય ધર્મ, એમાં પણ મૂળ તમે વીતરાગ ધર્મમાં લો. જે વીતરાગ ધર્મમાં જન્મ્યા છે એમને લો, એમાં પણ બાહુલ્ય છે આનો જ, કે સ્વરૂપનું સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાન વર્તે છે. એટલે આંશિક અજ્ઞાન જાય તો મોહ ગ્રંથિનો ભેદ થાય, ત્યારે એમ કહેવાય કે એમને થોડુંક અજ્ઞાન ગયું અને આગળની દશા જુદી છે. અને તેના પરિણામે તીવ્રપણે પ્રવર્તે છે રાગ, દ્વેષ આદિ વિકારો. અજ્ઞાન છે એટલે ઘણા જ રાગ દ્વેષ વર્તે છે. અત્યારે આપણે ધર્મક્ષેત્રમાં પણ જોઈએ કે જેને ધર્મ કરવો છે એવી શ્રદ્ધા છે, ધર્મ સુખદાયી છે એમ કરીને જે ધર્મ માર્ગમાં આવે છે, એમાં પણ અજ્ઞાનના કારણથી આ તીવ્ર રાગ દ્વેષ જ વર્તે છે. એટલે પોતાના સંપ્રદાયને વધારવા માટે બીજાના સંપ્રદાય પ્રત્યે નિંદા કરવી, એને યેન કેન પ્રકારે રોકવો, સામ દામ ભેદ દંડ, અહીંયા સુધી કે હત્યા કરવી પડે તો હત્યા પણ કરે. કનકગીરીમાં ત્યાં ભુવન કીર્તિ કરીને એક ભટ્ટારક છે, એમણે ત્યાંની હિસ્ટ્રી બતાવી. આ તો કહેવાય નહીં, પણ તે વખતના જૈન ધર્મના દ્વેષી, મુસલમાન નહીં, ક્રિશ્ચન નહીં, પણ હિન્દુ, હિસ્ટ્રી છે, આપણને શું તથ્ય છે એ ખબર નથી, પણ શ્રી શંકરાચાર્યજીના નેતૃત્વમાં જૈન સાધુઓને, કેટલા જૈન સાધુ તો કહે છે કે એક નદીમાં 7,000 જૈન સાધુઓને કત્લ કરીને વાવી દીધા. દિગંબર મુનિ કેટલા? 7,000. ત્યારે શ્વેતાંબર તો હતું જ નહીં, એટલે દિગંબર જ હતું. અને એના પછી પણ ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ. શા માટે? એમને ધર્મ કરવો હતો, આ પણ ધર્મ કરી રહ્યા હતા, પણ અમારો ધર્મ જ સાચો, અમારા ધર્મમાં નહીં આવશો તો તમારું કલ્યાણ નહીં થાય, અથવા તમે અમારા ધર્મના વિરોધી છો. જો કે વિરોધી નથી, પણ એમના કારણથી એ ધર્મનો ઓછો થાય, લોકો વળે, એના કારણથી નિર્દોષ સાધુઓની તમે નિંદા કરો ત્યાં સુધી તો ચાલે, પણ તમે એમને હત્યા કરી નાખો. અને એ કહેતા હતા કે એટલા બધા જૈન શાસ્ત્રોને બાળ્યા, ખૂબ જ.
આ તીવ્ર રાગ દ્વેષ પણ એ વર્તે છે જીવો, એનો બાહુલ્ય છે. અત્યારે પણ ઓછું નથી, થોડોક એના કરતાં ઓછું છે, પણ ઓછું નથી. આ સાંપ્રદાયિક આગ્રહ જબરદસ્ત છે. આ આતંકવાદનો જન્મ અહીંયાથી થયો છે. આજે આ બધું ભારત પાકિસ્તાન લડાઈ ચાલે છે, એને ધર્મમાં એમ શીખડાવે છે કે જે આપણો ધર્મ સ્વીકાર નહીં કરે બધા કાફિર છે, નાપાક, અપવિત્ર છે. એટલે આપણે એમને યેન કેન પ્રકારેણ આપણે ધર્મમાં લાવીએ તો ઘણું પુણ્ય છે અને ભગવાન અલ્લાહ જન્નત આપશે. અને જો ન આવે તો એમની હત્યા કરવામાં કંઈ વાંધો નથી, કેમ કે એવા જીવો એવા જીવો જીવશે તો એ નરકમાં જ જવાના છે, કેમ કે આપણે ધર્મમાં નથી આવતા. એવી એમની માન્યતા છે. એના કારણથી જિહાદ, ધર્મયુદ્ધ કહેવાય છે કે ધર્મ માટે લડો, બીજાને પોતાના ધર્મમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એને લડાઈ કરવીનું નામ જિહાદ કહેવાય છે. આ ક્યાંથી આવ્યું? સાંપ્રદાયિક આગ્રહ. જબકી જે ધર્મ પાળતા હોય એમાં સારી સારી જ વાતો છે, એમાં ઈમાનદારીની વાતો છે, સત્યની વાતો છે, કોઈને મારવાની વાત નથી, કોઈને કંઈ કરવાની વાત નથી. સચ્ચાઈની જ વાત દરેક ધર્મમાં છે. કોઈ ધર્મમાં એવો તો છે જ નહીં કે તમે હિંસા કરો, અસત્ય બોલો, ચોરી કરો, વ્યભિચાર કરો, એવો તો કોઈ ધર્મમાં છે જ નહીં. તો આ આવ્યું ક્યાંથી? કે દરેકને એમ લાગે છે કે મારો ધર્મ છે એ જ પરમ સત્ય છે, અને જો મારા ધર્મમાં કન્વર્ટ ન થાય તો આનું કલ્યાણ ન થાય, એટલે આને આપણે ધર્મમાં લાવવા. અને જો ન માને તો જબરદસ્તી લાવવા, અને પછી ન માને તો ગુસ્સો આવે તો એના મારવામાં કાંઈ વાંધો નથી. આ વસ્તુ ક્યાંથી? એના શાસ્ત્રમાં નથી લખી. આવી ક્યાંથી? પોતાના ધર્મમાં કન્વર્ટ કરો, પોતાનો ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, સર્વોત્તમ છે. આ એક આગ્રહથી આવી છે વસ્તુ કે તમે અમારા ધર્મમાં નહીં આવશો તો તમારું કલ્યાણ ન થાય. બધા પોતપોતાને એમ કહે છે. હવે શું કરવું? જો જે સત્યનિષ્ઠ હોય એ તો એમ કે ભાઈ આ વસ્તુ ધર્મ છે, આનાથી કલ્યાણ થાય છે. હવે તમારા હાથમાં છે કે તમારે આને સ્વીકાર કરવો અથવા ન કરવો. હું કહું છું એટલે સ્વીકાર નહીં કરતા, એમ કુંદકુંજ સ્વામી કહે છે. વિતરાગી સંતોનો જુદા જ પ્રકારનો. તમે અનુભવ કરીને જુઓ, તમને સાચું લાગે તો સ્વીકાર કરજો, નહીં તો અમારે તો કંઈ વધારવા નથી. અમારે ધર્મની સંખ્યા વધારવી નથી, અમારે ધર્મ કરવો છે. અને આજે આપણે બધા સંખ્યા વધારવામાં લાગી ગયા. દરેક ધર્મની સંખ્યા વધારવાની, પોતાના ધર્મના સ્થાનકો, મંદિરો જે હોય છે બીજાના તોડી નાખવાના, અથવા બીજાના હોય તો પોતે કન્વર્ટ કરી નાખવાના. એ સ્વામીજી કહેતા કે ઇધર પહેલે પુરાની બધી જૈન સંસ્કૃતિ હતી. ગાંવ ગાંવ મેં દિગંબર મંદિર,
गांव गांव में वो सभी मंदिर आज किसी देवी देवताओं के हैं। ત્યાં બધા કપડાં પહેરાવે એમને, પણ માતાજી બનાવે, કોઈક ને કોઈક દેવ બનાવે, એમ કરીને બધા પૂછે કેમ कि जैन सब चले गए शहरों में, अब उनको सार संभाल कौन रखे। उन लोगों को जैसे आता था तो वो अपने धर्म में सबको बना दिया। इवन तिरुपति बालाजी हैं, वो भी दिगंबर जैन मंदिर। ये तो सुप्रीम कोर्टे ऑर्डर आपी दीधो स्पष्ट। ने तमे आ चार धाम बधा जुओ ने, बधा चार धाम એટલી આ સંસ્કૃતિ સમૃદ્ધ હતી। ચારેય ધામોમાં ચારેય દિગંબર મંદિરો છે। એ બધી પ્રતિમા આટલું સ્પષ્ટ સત્ય બોલવું એ જિમ્મેદારીનો વિષય છે, પણ પ્રમાણિક છે આખું। હા, એ તો જ્યારે ખોલે તો બધા દર્શન કરવા જેનો જાય આદિનાથ ભગવાન, એ સવારે સવારે જ્યારે ખોલે તો એ આદિનાથ છે, કપડાં પહેરાવે તો તે બદ્રીનાથ છે। એવો છે, નાથ તો છે જ। बात मामला क्या है कि व्यक्ति को अपने धर्म में संतुष्टि नहीं है तो दूसरे बहुत सारे हमारे साथ जुड़े, उसके लिए वो हिंसा भी कर लेता है, जबकि उसका धर्म उसको अहिंसा सिखाता है। किसी का धर्म उसको हिंसा नहीं सिखा रहा है, परंतु उसको इतनी अधिक दया आ रही है कि उस दया के कारण से उसको गुस्सा क्रोध आ रहा है कि बेचारानो भलो थई जाए। उस भला करने के चक्कर में उसको कषाय जागती है। ऐसा भला क्या करना। दूसरा आपके धर्म में नहीं आना चाहता, आप क्यों लाना चाहते हो उसको जबरदस्ती। आप जहां हो वहां खुश रहो, आपको वो अच्छा लगता है वो करो। एक घर में पण एवुं होय कि આપણે મમ્મી પાપા હોય તો એને પોતાના છોકરા ઉપર એને થોપીએ, તારે આ જ ફોલો કરવાનું, બીજું ફોલો ન કરવાનું। भाई उसको जो जचे वो करने दो, इसमें क्या दिक्कत है। आप अपने जीवन को अपने धर्म में दृढ़ता से डटे रहो, उसको लगेगा कि ये कर रहे हो बराबर कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमको ही विश्वास होना चाहिए। हमारे दर्शन पर हमारे धर्म हमारे आचरण में आएगा तो सब फॉलो करेंगे। हमको जी करके बताना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको थोपना नहीं, तारे आम करो ना आम करो नहीं। आपका जीवन दिखेगा कितना प्रसन्न जीवन है, कितना आनंदमय जीवन है, कितना समत्व वाला जीवन है, कितनी सहनशीलता है। तो देखेगा कि बराबर આપણે આ જ ધર્મ કરવાનો છે, क्योंकि उसमें धर्म के लक्षण दिखते हैं। पर जबरदस्ती तारे मंदिर जवानू, तारे आम क्यों मंदिर जाएगा, वो पूछेगा बच्चा क्यों मंदिर जाऊं मैं, क्यों पूजा करूं मैं, क्यों भक्ति करूं मैं, क्यों स्वाध्याय करूं मैं। तो પછી કે इससे अपने आत्मा में शांति मिलती है, अपने आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, अपनी आत्मा का विकास होता है। तो वो देखता है आपके अंदर कितना हुआ है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप अभिषेक कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, और इससे आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, शांति मिलती है, आपके जीवन में दिखनी चाहिए। बच्चा तो वो देखेगा कि मम्मी मंदिर से आती है ना गुस्सा करती है, तो वहां आके गुस्सा, तो वो मंदिर में 1 घंटा गई वो थोड़ी देखता है बच्चा। बच्चा तो यही देखेगा मम्मी झूठ भी बोलेगी फोन पर,
तो वो बच्चा वो देखता है कि देखो ये तो झूठ बोल रहा है, और हमको सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना। तो व्यक्ति क्या करता है वो देखता है। इसलिए जिस धर्म में, जिस दर्शन में हम रहें, उसको पालें अच्छी तरह से, तो उसकी संख्या बढ़ती है। नहीं पालते तो संख्या कैसे बढ़ेगी? आज जैसे इस्लाम की संख्या बढ़ रही है, क्यों? लोग पालते हैं। छोटा बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, नियमित उनके मस्जिद में जाएगा, उसकी भाषा को नहीं छोड़ेगा। भले लंदन में हो कि अमेरिका में, उनके घर पे उनकी भाषा चलेगी, उसकी लैंग्वेज चलेगी। आज अपने बच्चे को अपनी भाषा नहीं आती, धर्म कहां सीखेगा? वो लोग भी सीखते हैं, विदेश में जाते तो अंग्रेजी भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, पर अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे, अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो बढ़ रहे हैं, दृढ़ता है उनके अंदर, उनकी वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी लेनी चाहिए। उनसे द्वेष काहे को करे अपन? वो सब सिखाना जिम्मेदारी अपनी बनती है सारी। पर हमको अपने बच्चों को बड़ा बनाना है दुनिया की दृष्टि से, उनको धर्मात्मा नहीं बनाना है। उन लोगों का ये है कि आप पहले धर्म आपके जीवन में आना चाहिए, भले कैसा भी, हमारा धर्म कैसा भी, पर वो जीवन में आना चाहिए। इसके बाद आप दुनिया की दृष्टि से बड़ा बनना हो तो बनो। फर्क पड़ गया सारा। गलती कहीं न कहीं अपनी होती है। अगर किसी धर्म का पतन हो रहा है तो वहां दूसरे की कोई गलती नहीं। भारत गुलाम हुआ, सामने वाले की कोई गलती नहीं, हमारी गलती है। हमारे अंदर एकजुटता नहीं। दूसरे क्या करें? वो तो लाभ उठाएंगे। दो कुत्ते लड़ा रहे थे, उनको कहीं से रोटी मिली, तो कौन खाए? तो निर्णय नहीं करे तो कौन खाए रोटी? तो बंदर था, तो बंदर के पास गए कि भाई हमारा न्याय करो कि रोटी किसको खानी। बंदर बड़ा चालाक था, उसने उसको रोटी खानी थी, और देखिए ये दोनों लड़ रहे हैं। तो उसने कहा ऐसा करते हैं अपन, तुम दोनों आधी आधी खाओ रोटी। उसने बड़ी चालाकी की, उसने दो टुकड़े नहीं किए, एक टुकड़ा बड़ा किया, एक छोटा किया। उस कुत्ते ने कहा कि नहीं, इसका तो बड़ा है, मेरा छोटा है मेरे को। तो उसने उसको, चलो ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं। ऐसा करके उसमें से टुकड़ा काट लिया और वो स्वयं अपने पास रख लिया। फिर उसने इतना बड़ा टुकड़ा काटा था कि अब उसका बड़ा हो गया ना, इसका छोटा हो गया। तो वो कहने लगा देखो अब उसका बड़ा हो गया, अब ये भी अन्याय है। तो उसने चलो इसमें से एक टुकड़ा काट लेते हैं। ऐसा करके उसने उसमें से टुकड़ा काट लिया, फिर अपने पास रख लिया, फिर उसका छोटा हो गया। ऐसा करते करते उसने सारी रोटी खा ली, उन दोनों को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही अपने लोगों को भिड़ाया, तुम्हारा राज्य इतना बड़ा है, थोड़ा और बड़ा करो। तो छोटा है तो और बड़ा करो, बड़ा है तो और विस्तार करो। फिर आप हमारी सेना लो, उनकी सेना ली, हमको इतना हिस्सा देना, फिर उतना हिस्सा दिया। फिर धीमे धीमे अपने सैनिक रखने लगे, फिर उनको खर्चा देने लगे। ऐसा करके अंग्रेजों ने सब खत्म कर दिया। कमी किसकी? कमी अपनी।
फिर कहते हैं हमारी संख्या बहुत कम हो रही है। कमी किसकी? अपनी। बच्चों को अपने को सबको विदेश भेजना, सबको बड़ा बनाना है ना, एजुकेशन का बहुत खर्चा है ना, ऐसा। कितने बच्चे होंगे? एक। एक ही बालक होता है। गलती से वो तो पहले कोई लड़की हो तो दूसरा बच्चा हो जाता है, नहीं तो होते गलती से। क्योंकि आज भी समाज में ऐसा तो है ही, लड़के लड़की का तो। अब कहाँ से परिवार रहेगा, कहाँ से संबंध रहेंगे, कहाँ से ये सब व्यवहार चलेगा, कैसे होगा? अभी दीप्ति बेन का देवांग है। अब उस दीप्ति बेन के वहाँ तक तो ठीक है कि चलो उनकी बहन है, परंतु उसके लड़के हो गए, उसके कोई काका नहीं होगा, उसके कोई मामा नहीं होगा, उसकी कोई मासी नहीं होगी, उसकी कोई बुआ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा उसका। कहाँ से होगा जब एक ही है? दो हो तो ना, सारे के सारे है ही नहीं। सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो चुकी है। फिर कहते अपने बहुत कम हो गए, तो कम ही होंगे। वो तो कम कर रहे हैं इसलिए कम हो रहे हैं। किस कारण से? एक तो बहुत बड़ा बनाना है सबको, खर्चा कौन करेगा? और एक ऐसी मानसिकता होगी अभी कि ये बच्चे हैं, वो टेंशन है। कौन टेंशन ले भाई? पाल ही नहीं सकते हैं। पालना कितना कठिन है, एक बच्चे को पालना कितना कठिन है, ऐसा लगता है। मम्मी को अपना कैरियर बनाना हो, अबे तो हाँ, एक भी नहीं। આપણે ગયા હતા ને, 11 વર્ષ થઈ ગયા અમને લગ્ન કર્યા ને। પછી મેં પૂછ્યું બરાબર आपके कोई संतान होगा? ना, हमारा कोई विचार नहीं। तो क्यों शादी कर रहे हो आप? भोग विलास के लिए? ये तो केवल भोग विलास के लिए विवाह कर रहे हो। विवाह तो इसलिए किया जाता है ये समाज और ये धर्म सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमको भी समाज में योगदान देना है। इसके लिए विवाह किया जाता है। भोग विलास के लिए विवाह थोड़ी किया जाता है। कषाय निकालने के लिए विवाह थोड़ी किया जाता है। विवाह तो अपने एक संस्कार है। आपको कोई जीवन में लाया है तो आप इतना धर्म कर सकते हो, ये सारा कर सकते हो। आप किसी को नहीं लाओगे तो कैसे करेगा वो? जिम्मेदारियों से भागना ही हुआ ना। या तो आप गृहस्थ जीवन जियो ही मत, और जियो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप समाज को कुछ देकर के जाओ। और अच्छे घर में अच्छी संतानें आएंगी तो अच्छा ही बढ़ेगी। जिनको कुछ संस्कारों के ठिकाने नहीं है ना, ऐसे 5-5, 10-10 बच्चे हो रहे। अभी क्या होगा? यही होगा, थोड़े दिनों में सारा देश होगा उनका, होगा ही वो तो। और इम्बैलेंस होता है समाज में। एक अच्छा प्रबुद्ध वर्ग घट रहा है और जो जिनके संस्कार ही नहीं है ऐसा वर्ग बढ़ रहा है। तो हाँ, सबकी पैसे नहीं चाहिए तो भी पढ़ाई किए ना, इसलिए हमको कुछ न कुछ तो करना ही है। हाँ, सही बात है। धीरज ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी बच्चे को पालना कोई सामान्य बात तो है नहीं, पर धीरज। और इस कारण से क्या है कि जब कोई भी लड़की माँ नहीं बनेगी तो वो स्त्री नहीं हो सकती। और स्त्रियोचित कोई लक्षण उसमें नहीं आएंगे। उसमें वात्सल्य नहीं आएगा, ममत्व नहीं आएगा, सहनशीलता नहीं आएगी। ये सब चीजें उसमें आ ही नहीं सकती। वो तो जब लड़की स्त्री बनती है तब पता पड़ता है उसको, ये सारी चीजें आती है।
और जिस समाज में स्त्रियां ही नहीं रहेगी, उस समाज में वात्सल्य, प्रेम, करुणा ये आएंगे कहां से? अगर इस समाज में पूरे पूरे पुरुष हो जाएं तो ये समाज पूरा नरक हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में अहंकार के सिवाय कुछ नहीं होता है। प्रेम, वात्सल्य वगैरह ये कोई पुरुषों में नहीं होते हैं। सामान्य रूप से बात करते हैं अपन, ये सब तो घर में स्त्री होती है, इसलिए कोमलताएं हैं, इसलिए दया है, इसलिए करुणा है, इसलिए प्रेम है, इसलिए वात्सल्य है। पुरुष ही पुरुष जिस घर में होते उस घर को देखना, वो घर घर नहीं होता है, शमशान जैसा होता है वो। एक दूसरे के प्रति कोई कुछ नहीं होता है। और वर्तमान में क्या हो रहा है? स्त्री खत्म हो रही है, पुरुष हो रहे हैं। एक तो जो द्रव्य से पुरुष है वो तो पुरुष है ही, और अब जो स्त्री है वो भी पुरुष बन रही है, क्योंकि उसको सब पुरुष के जैसा करना है। उसको कपड़े भी पुरुष के जैसे पहनने हैं, उसको काम भी पुरुष के जैसा करना है, सब कुछ। और किस समानता के नाम पर? तो भी दो प्रकार के, वो आचार्य रजनीश बहुत जोरदार कहते थे इसमें, आने वाले समय में ये जो पृथ्वी है वो नरक हो जाएगी। और उसका कारण बताया उन्होंने कि यहाँ स्त्री समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी स्त्रियां पुरुष बनना चाहती है, और वो स्त्री पुरुष तो पूरी बन नहीं सकेगी, और स्त्री रहेगी नहीं, तो होगा क्या? न वो स्त्री रही न पुरुष रही हो। तो हाँ, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स समाज में क्रिएट हो रही हैं, ये अज्ञान है। तीव्र राग द्वेषपणे वर्ते छे एवा जीवोनो बाहुल्य आ जगत में, इस संसार में देखा जाता है। समस्याएं हैं, पर उसका समाधान हमको ही लाना है, और कोई लाएगा नहीं। ऐसी जब सोच धीमे धीमे बनती जाएगी, आज धीमे धीमे जो जागरूक हैं वो ऐसे विचार दे रहे हैं कि अभी वापस जागृत हो, संयुक्त परिवार वाला वापस लाओ सब। और कभी भी जनसंख्या की वृद्धि कोई समस्या का कारण नहीं रही। लोग कहते हैं गरीबी इसलिए कि जनसंख्या ज़्यादा है, बिल्कुल गलत बात है। ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, और वहाँ गरीबी नहीं है। जनसंख्या की बात करते हैं, हमारे इसी देश में जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, उस समय वर्तमान में अपने देश की वर्तमान में जितनी जनसंख्या है ना, उससे कहीं अधिक उस महाभारत की लड़ाई में सैनिक मरे थे। इतने तो सैनिक थे, वो मरे थे। अब बताओ उस समय भारत की जनसंख्या कितनी होगी इस देश की? तो वो कोई गरीब थे क्या? बहुत समृद्ध थे। भगवान महावीर के समय इस देश में 30 करोड़ जैन थे। वो तो 3000 साल पहले की बात है। अब जैन ही 30 करोड़ थे, बाकी कितने होंगे? तो जनसंख्या को अभी से कम होगी, अभी से कहीं अधिक ज्यादा जनसंख्या उस समय। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखो, अभी से अधिक ही जनसंख्या, और सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी जनसंख्या की वृद्धि प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जरा भी। पर ये तो पता नहीं कम्युनिस्टों ने ये बवाल खड़ा कर दिया। इन लोगों को घटाना, कैसे घटाना? ऐसा उसके अंदर कि बहुत अधिक बच्चे पैदा मत करो, जनसंख्या बढ़ती है तो ये हो जाता है। अब फॉरेन वालों में वहाँ जनसंख्या निरंतर घट रही है, अब वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो इनाम देते हैं, आप अगर 1 बच्चा पैदा करोगे तो हम आपको इतना पुरस्कार देंगे, आप 2 करोगे तो आपको गाड़ी देंगे। ऐसा हो रहा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब देशों में। हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसके बिना अपना कोई ठिकाना, कोई उद्धार ही नहीं।
ये सामाजिक वस्तुओं पर धर्म के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता। आज इस वितराग दर्शन के मूल्य बहुत हैं, परंतु सामर्थ्य नहीं हो तो आपके सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा। सत्य के पीछे सामर्थ्य होना चाहिए। जिसकी शक्ति नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। जिसके पास शक्ति होती है, उसी की सत्ता होती है। उसके पीछे एक सामर्थ्य खड़ा होना पड़ेगा। अपने जीवन को, अपने को एक आदर्श बनाना पड़ेगा। कठिन है सब चीजें। इसमें से जितने कुर्सी पर बैठे हैं ना, उसमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मस्ती से रहते थे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे, सब अच्छा होता था। ये सब कमाई के धंधे और कमाने के। अपना विषय तो ये था कि कषाय, ये कषाय है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं। हम देश के बारे में नहीं सोच रहे, समाज के बारे में नहीं सोच रहे, धर्म के बारे में नहीं सोच रहे कि वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। केवल हम अपने बारे में सोचते कि मैं सुखी रहूं, बस मैं आनंद में रहूं, इतना सोचते हैं। तो वो आनंद में रह भी नहीं पाते। मेरे को कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। अभी एक प्रथा तो मैंने जोरदार सुनी। वो क्या लेते हैं, उधार में गोद। मतलब उसको बच्चा चाहिए। हाँ, उसको बच्चा चाहिए, पर वो पालेगा किसी कोई और स्त्री, उसके पेट में पलेगा वो बच्चा। सोरोगेट में 9 महीने वो बच्चा उसके पेट में रहेगा। और वो प्रोफेशनल होते हैं। ये जितने बॉलीवुड की हीरोइन वगैरह होती है ना, तो उनको यूँ होता है, उनको बच्चा तो चाहिए और खुद का ही चाहिए, दूसरे का भी हो ऐसा भी नहीं है। परंतु वो क्या करते हैं, हाइब्रिड होता है, इसके बाद वो दूसरी किसी स्त्री में ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो 9 महीने वो बच्चा उसमें रह, और वो पूरा बच्चा उसमें विकसित करके वो पैदा होगा और उसको दे देगी। वो भाड़े की स्त्री होती है। और ये प्रथा अभी इतनी जबरदस्त चल रही है। हाँ, अब 9 महीना किसी और के पेट में रहा है तो, और वो किराए के, किराए है ना, वो तो वहां रख रखा है। जब सबसे अधिक संस्कार बच्चे के वहां होते, उस समय आपने उसको किराए पे दे रखा कि वहां भाड़े वाली स्त्री उसको। अब वो कोई माँ थोड़ी है, उसका तो धंधा है। हाँ, वो तो सब ऐसा ही है सर। और उसको कोई ममत्व थोड़ी, उसको तो धंधा है। उसको तो केवल अच्छा बड़ा करके उसको दे देना है। ये है मामला। फिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जितने बॉलीवुड वगैरह की, उनके बच्चे उनके कंट्रोल में ही नहीं है। क्यों कंट्रोल में होंगे? आपके पेट में पला होगा तो कंट्रोल में होगा क्या? आपका कोई संस्कार ही नहीं है उसका। और ये धीमे धीमे अभी शहरों में हो रहा है। अब धीमे धीमे, और जो बड़े घराने वगैरह था ना, क्योंकि उसको ऐसा है कि मुझे हमेशा सुंदर बने रहना है। स्ट्रक्चर शरीर का बराबर रहना चाहिए अपना। तो बच्चे के कारण से कभी स्ट्रक्चर नहीं होता। लता मंगेशकर, उसने विवाह क्यों नहीं किया पता है? उसके 2 रीजन थे। एक तो राज सिंह डूंगरपुर, उनसे प्रेम था, परंतु वो उनको विवाह, क्योंकि वो राजपूत और वो अलग थे, इस कारण। पर उसका मुख्य दूसरा रीजन क्या था कि उसकी स्वर पेटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए उसने शादी नहीं की, विवाह ही नहीं किया उसने, कि मेरा यह गायन है वो रहना चाहिए। ये मुख्य रीजन है उसका। तो कभी कभी हम अपने स्वार्थ, अपने कैरियर, उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम समाज को कितना नुकसान कर रहे हैं।
गृहस्थ जीवन है वो बाकी 3 आश्रमों का आधार है। उसको बहुत अच्छे से, वो ऋण है। आप गृहस्थ जीवन में जाते हो, विषय भोग करते हो, तो आपको समाज को कुछ देना है, नहीं तो आप मत करो, सन्यास में चले जाओ, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। पर गृहस्थ में हो तो फिर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये तो प्रासंगिक वस्तु थी। तीव्र कषाय की बात है ना, ये तीव्र कषाय, अपन को पता ही नहीं पड़ता है कषायों का स्वरूप। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, हो प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी भगवान पंच परमेष्ठी भगवान की परम कृपाणु देव की सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।